ابھی 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ امام دین چچا خالی مشک کندھے پہ ڈالے ہوئے اندر آ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، ہیں اب لگی نا بات؟ جا رے سندر تو اپنا کام کر، ہم گوشت پکائیں گے، بھاگے گا خوشبو سونگھ کر۔ رام رام، چلے ہیں بھیا، یہاں تو خون خرابہ ہوئے ہے، سندر لال نے کہا اور ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا۔ امام دین ہنسنے لگے تھے، پھر وہ بولے، بھیا سکے ہیں ذات کے، گھروں میں پانی بھرے ہیں اور اللہ روزی دے دے ہے، جو کچھ بھی ہے حاضر ہے تمہارے لیے، گوشت رکھا ہے ابھی پکا لیتے ہیں، کھانا پکا لیں پہلے، بعد میں باتیں کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں امام دین چچا۔ ارے کیسی باتیں کرے ہو، بیٹھو آرام سے، ہاتھ دھو لو اور گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ لوٹا رکھا ہے، جاؤ جاؤ مہمان ہو بھلا، تم سے ہم کام کروائیں گے کیا؟ بڑا مخلص اور سچا انسان نظر آتا تھا۔ مشک ایک طرف رکھی، تمباکو کا پڑا جو سندر لال ساتھ لایا تھا دیوار میں بنے ایک تاک میں رکھا، اس کے بعد سامنے ہی بنے ہوئے چولہے کے قریب پہنچ گیا، یہاں تھوڑا سا سامان رکھا ہوا تھا۔ سلور کی ایک دیگچی میں اس نے ضروری کارروائیوں کے بعد مسالے وغیرہ ڈالے اور پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ اکیلے ہیں، ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، نگر میں ہی پلے بڑے ہیں، خاندانی سکے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں، تم سناؤ بھیا کہاں سے آ رہے ہو؟ بس امام دین چچا، لاوارث ہوں میں بھی، نہ جانے کہاں کہاں سے بھٹکتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا کہ بیچارہ سندر لال اپنی بیل گاڑی پر مل گیا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ نگر کتنے فاصلے پر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا، جب تک مرضی آئے ہمارے ساتھ رہو، نگر بڑی اچھی جگہ ہے بھیا، وہ دیکھو تھوڑے فاصلے پر جو بلندیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، وہاں سلیم بابا کی مسجد ہے، اور وہ ادھر وہ جو لال رنگ کی پکی عمارتیں نظر آ رہی ہیں وہ رانی جودھا بائی کا محل ہے۔ اکبر بادشاہ کی بہت سی کہانیاں نگر میں پھیلی ہوئی ہیں اور سارے کے سارے تمہیں اسی کی کہانیاں سنائیں گے۔ میں نے ان بلندیوں کی جانب دیکھا، مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے، بڑا سا گنبد سلیم الدین چشتی کا مزار بھی اسی مسجد میں ہے، اور ان بزرگ کے نام سے بھلا کون واقف نہیں۔ ایک بار پھر دل کو عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ امام دین سکے کے خلوص کا اندازہ ہو چکا تھا، ویسے بڑی متاثر کن شخصیت تھی، اور میں یہاں آ کر ایک عجیب سی فرحت بھی محسوس کر رہا تھا، انوکھا پن محسوس ہو رہا تھا مجھے اس گھر میں۔ میں نے منہ دھویا اور امام دین چچا نے جلدی سے ایک میلا سا تکیا لا کر چارپائی کے سرہانے رکھ دیا اور بولے، لیٹ جاؤ بھیا، حقہ پیو ہو، بھر لیں، ہم پئیں گے اور ساتھ ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ حقہ لے کر آگے بڑھ گئے، حقے کو غسل دیا، چلم بھری اور حقے پر جمایا، اور پھر ہاتھ میں اٹھائے میرے سامنے آ بیٹھے، سادہ سادہ معصوم معصوم باتیں۔ پھر اچانک امام دین نے میرے چہرے اور بدن کے نشان دیکھے اور بولے، یہ کیا ہو گیا بھیا؟ بس چچا، بیماری ہو گئی ہے، یہ نشان پڑ گئے ہیں، مولا شفا دے گا، ہم پانی پڑھ کر دیں گے، مولا کے کرم سے ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے خلوص سے کہا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دو عورتیں ایک حلق پھاڑتے بچے کو لے کر آئیں، بچہ رو رو کر ادھموا ہوا جا رہا تھا، دونوں عورتیں بے حد پریشان تھیں، ان میں سے ایک عمر رسیدہ تھی اور دوسری نوجوان۔ ارے ارے، اسے کیا ہو گیا ایدن بہن؟ دیکھو تو امام بھیا رو رو کر مرا جا رہا ہے، صبح سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیا، معمر عورت نے کہا۔ دیکھے ہیں، امام دین نے کہا، گھڑے کے پاس جا کر پانی نکالا، کلی کی اور بچے کے پاس جا بیٹھے، کچھ پڑھا اور 3 بار بچے پر پھونک دیا، بچہ ایک دم خاموش ہو گیا، میں ششدر رہ گیا تھا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ امام دین سکہ کچھ ہے، بلکہ بہت کچھ ہے، عجیب کردار تھا، انتہائی متاثر کن۔ امام دین نے کہا، جا کیوں ماں اور دادی کو پریشان کر رہا ہے، لے جاؤ ایدن بہن، سسرے کو نظر لگ گئی تھی، اب دودھ بھی پیے گا۔ دونوں عورتیں چلی گئیں اور امام دین چچا پھر میرے پاس آن بیٹھے۔ نظر پتھر کو بھی کھا جائے ہے بھیا، آپ یہ علاج بھی کرتے ہیں چچا؟ ارے نہیں بھیا کی باتیں، ہم علاج کریں گے کسی کا؟ پڑھے نہ لکھے، بس بسم اللہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور مولا عزت بنا دے، پھر بھیا بسم اللہ سے پڑھ کر اور کیا ہوئے ہے؟ بولو کچھ ہے، ہنڈیا جل رہی ہے۔ شاید وہ جلدی سے اٹھ گئے، کچے پکے گوشت کی لذت ناقابل بیان تھی، طبیعت سیر ہو گئی، کھا پی کر سو گیا۔ امام دین یہ کہہ کر چلے گئے کہ 2-4 گھروں میں مشک ڈال آئیں، کب واپس آئے پتہ نہ چلا، مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ جب آنکھ کھلی امام دین چچا کچھ پکا رہے تھے، دالان میں لالٹین لٹک رہی تھی اور اس کی پیلی روشنی پھیل رہی تھی، اس وقت باہر سے آوازیں سنائی دیں، چچا جی، امام دین چچا۔
आजा रे गर्धारी आजा भैया, क्या बात है। दरवाजे से दुबले पतले बदन का एक आदमी धोती कुर्ता पहने अंदर आ गया। उसके हाथ में पीतल की गड़वी थी। सुंदरलाल ने बताया, चाचा के घर मेहमान आया है, दूध लाए हैं अपनी गैया का मेहमान के लिए। लो बाबू पी लो, खालिस दूध है, मक्खन भरा। जीता रह गर्धारी, ले लो मसूद भैया, बड़ा अच्छा आदमी है गर्धारी। मैंने पीतल की गड़वी ले ली, गाढ़े दूध से लबालब भरी हुई थी। गर्धारी चला गया। इमाम दीन बोले, लाओ दम कर दें, सफ़ेद चीज़ है, खुले आसमान तले आई है, दम कर दें तो पी लो। मैंने गड़वी आगे बढ़ा दी। नहीं चचा, दूध बहुत काफ़ी है, इतना नहीं पी सकूंगा। इमाम दीन ने उस पर कुछ पढ़कर फोंक दिया, फिर गड़वी मुझे देकर बोले, लो पी लो। नहीं चचा, दूध काफ़ी है, मैं इतना नहीं पी सकूंगा। अरे जवान आदमी हो भैया, पी जाओ। चलो ना, इस कटोरे में पलट लो, बाकी रख दो, चाय बना लेंगे। मैंने उस हिदायत पर अमल किया। कटोरा लेकर दूध उल्टा, मगर अचानक मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। दोनों बर्तन मेरे हाथ से लरस कर नीचे गिर गए। ये क्या? ये खुले कटोरे में दूध के साथ पोर बराबर लंबे लंबे कीड़े कुलबुला रहे थे। गड़वी में भी यही हाल था। कीड़ों की तादाद एक दो नहीं बल्कि बेशुमार थे। चाचा, मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। क्या है? इमाम दीन ने इत्मीनान से पूछा। ये देखो ज़रा, ये देखो, मैंने कहा और कटोरा आगे बढ़ा दिया। इमाम दीन चचा ने कटोरा मेरे हाथ से लेकर देखा, फिर लालटेन उतारा और उसकी रोशनी में उसे गौर से देखा। इसके बाद गड़वी भी मेरे हाथ से ले ली। उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। फिर वो आहिस्ता से बोले, सफली, ये क्या है चचा? है तो दूध, मगर इस पर गंदा अमल किया गया है। बहुत दिन हो गए हम हाथरस गए थे, वहाँ एक बनिया नाथूराम रहता था। मालिक ने बहुत दिया था, मगर औलाद नहीं जीती थी। बच्चे होते थे, मगर जूं ही उन्होंने माँ का दूध पीना शुरू किया, उनके नाक और मुंह से ऐसे ही कीड़े निकलना शुरू हो जाते। फिर वो सूख सूख कर मर जाते। किसी सियाने ने देखा, इलाज किया, पता चला किसी दुश्मन ने माँ के दूध पर सफली करवाया हुआ था। हमने वो कीड़े देखे थे, ऐसे ही होते थे। पर इस सुसरे गर्धारी को क्या सूझी? इमाम दीन सोच में डूब गए, फिर जोश में आकर बोले, अरे इसकी तो ऐसी की तैसी, आइयो जरा। नहीं इमाम दीन चचा, रहने दे। अरे तुम आओ मेरे साथ, उसे हमारे मेहमान से क्या दुश्मनी हो सकती है? इमाम दीन चचा गरज कर बोले थे। वो गुस्से में भरे तेज तेज जा रहे थे। गड़वी मेरे हाथ से ले ली और बाहर निकले। मैं उन्हें आवाज़ें देता रह गया, फिर खुद भी उनके पीछे निकल आया। वो गुस्से में भरे तेज तेज जा रहे थे। रास्ते में मैंने भी उनकी खुशामद की, मगर गुस्से में डोले हुए थे, ना रुके और कुछ दूर जाकर एक दरवाजे के सामने रुक गए। उन्होंने दरवाजे की जंजीर जोर से बजाई थी। दरवाज़ा एक औरत ने खोला। इमाम दीन को देखकर जल्दी से ओढ़नी सर पर की, अदब से बोली, सलाम चचा। जीती रह जंकी, तेरा घर वाला कहाँ है, जरा भेज उसे। इमाम दीन ने कहा, बदरी के काका तो कल से आगरे गए हैं, तारीख थी ना उनकी, कल आवेंगे कह के गए हैं। औरत ने बताया। हैं? गर्दारी आगरे गया है? इमाम दीन हैरानी से बोले। मेरी तरफ देखा, फिर परेशानी से बोले, गैया किसने दोही थी? मैंने चाचा। औरत ने हैरानी से कहा। किसी को दूध भेजा था? किसी को नहीं भेजा चाचा, पर क्या हुआ? ये गड़वी तेरी है? इमाम दीन ने गड़वी सामने की। नहीं चाचा, हमारी नहीं है, पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, किसी ने दूध भेजा था मेरे यहाँ, मैं समझा गर्धारी। अरे हाँ, गर्धारी के मुकदमे की तारीख थी, कल मुझसे मिलकर ही तो गया था। अच्छा जानकी, आराम कर, आओ मसूद मियाँ। वो पलट पड़े, गड़वी के साथ कटोरा भी रास्ते में फेंक दिया। फिर बोले, गर्दारी ही था, मैंने खुद देखा था। पर यह भी सच है कि उसके मुकदमे की तारीख थी। फिर कौन था जो गर्दारी के भेस में आया था? और ये सब कुछ। हम घर वापस आ गए। इमाम दीन सोच में डूबे हुए थे। वो मुझे देखकर बोले, कोई दुश्मन है तुम्हारा? किसी से दौलत जायदाद का झगड़ा? ये दूध तुम्हारे लिए आया था, कोई ऐसी बात है मसूद मियाँ? नहीं चचा, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर बात क्या है? कुछ है तो ज़रूर, वो पुरख्याल अंदाज में बोले। मैंने खामोशी मुनासिब समझी थी। एक और मासूम शख्स को मौत के हवाले नहीं करना चाहता था। इससे पहले भी जिसे अपनी कहानी सुनाई वो अजाब का शिकार हो गया था। बेचारे नियाजुल्ला के लिए ही दिल रो रहा था। उनका हाल तो पता भी नहीं चल सका था, जबकि रामानंदी का हशर अपनी आंखों से देख चुका था। इमाम दीन अलबत्ता परेशान रहे, तरह तरह की बातें करते रहे। रात का खाना ठीक से ना खाया गया। मैं तो अपनी सोचों में गुम था, मगर इमाम दीन मेरी वजह से परेशान थे। रात को मैं सोने की कोशिश करने लगा।
जंगल ज़्यादा दूर नहीं था। गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। 12 बजे के बाद अचानक ही बिल्लियाँ भी रोने लगी। यूं लगता था जैसे बहुत सी बिल्लियाँ घुस आई हों सहन में। छत पर उनकी धमा चौकड़ी गूंजने लगी। अरे तुम्हारी कहाँ से आ मरी इतनी सारी? इमाम दिन लकड़ी लेकर पूरे सहन में हुश हुश करते फिरे। मैं खामोश लेटा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आते रहे। बिल्लियों ने सारी रात रत जगा किया। फिर अजान की आवाज़ उभरी और बेख्तियार सलीम बेग याद आ गए। वहाँ अस्पताल में नमाज पढ़ी थी, इसके बाद मौका ही नहीं मिला था। उठ गया। इमाम दिन वुज़ू कर रहे थे। मुझे देखकर बोले, नमाज पढ़ोगे? जी जज़ाक अल्लाह। तो वुज़ू कर लो। हम दोनों ने नमाज पढ़ी और इमाम दिन चाय बनाने चले गए। फिर अचानक मैंने उनकी आवाज़ सुनी। वो सहन में झुक झुक कर जगह जगह देख रहे थे। क्या है चचा? मैंने पूछा। अरे देखो तो ये सुसरी आंगन में क्या महाभारत हुई है। सारी रात बिल्लियां रोती रही हैं। कई बार भगाया मगर सुसरियों ने आंगन को पानीपत बना रखा था। सारे में खून बिखरा हुआ है। मैंने भी सहन में सुर्ख खून बिखरा हुआ देखा मगर मुंह से कुछ ना कहा। बर्तन भी खराब हो गए होंगे, दोबारा धोने पड़ेंगे। मैं धोता हूँ चचा। अरे ना भैया, 4 बर्तन ही तो धोने हैं। मगर कुछ है भैया, ज़रूर लाओ, चाय तो बनाएं। न जाने क्या क्या जतन करके इमाम दिन चचा ने चाय बनाई। एक प्याला मुझे दिया और दूसरा खुद लेकर मेरे सामने बैठ गए। सफली क्या होता है चचा? मैंने पूछा। भैया हम ठहरे गंवार, बस नमाज रोज़ा कर लें, दुआ दरूद फूंक दें, मगर ये ससरे होवे बकट है। यूं समझ लो मालिक ने शैतान को भी तो ताकत दी है कि जा सुसरे बहका मेरे बंदों को। अल्लाह वालों के आगे उस सुसरे की ना चले है, मगर सारे ही तो पहुँचे हुए ना हुए हैं ना। ये सारे काम शैतान के हैं भैया, और ये कोल्ही चमार ऐसे काम ज़्यादा करते हैं। उनका कौन सा दीन धर्म होवे है। उस मासूम इंसान का इल्म दर हकीकत इससे ज़्यादा था ही नहीं। बहुत ज़्यादा बातें उसके लिए नुकसान का बाइस बन सकती थी। भोरिया चरण फिर पागल हो रहा था और यह सब उसी का किया धरा है। चुनाचे मैं खामोश हो गया। सूरज निकल आया। इमाम दिन चचा ने मुश्क संभाली और बोले, 14 घरों में पानी डालना है, चलेंगे, तुम आराम करो, वापस आकर ये खून साफ करेंगे और फिर सोचेंगे। घबराना नहीं, कहो तो सुंदरलाल को भेज दें। नहीं चचा आप जाएं, मैंने कहा, और वो चले गए। मैं सोच में डूबा रहा, अब क्या करूं? यहाँ ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। आज ये हुआ है कि कल कुछ और होगा। ये नेक इंसान भी मेरी वजह से अपनी नेकियों का शिकार हो जाएगा। नहीं, अपनी मुसीबत मुझे खुद भुगतना होगी। बहुत से लोग मेरी वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं। क्या करूं? क्या तकदीर पाई है मैंने? क्या खुदकुशी कर लूं? मेरी मौत से न जाने किस किस को फ़ायदा पहुंचेगा। तकदीर में माँ बाप का दीदार ही नहीं है। जो खोया अपने हाथों से खोया। अपने कटे का क्या इलाज। जिंदगी तो बहुत से रुख रखती है, और जो हर जायज़ और नाजायज़ से दौलत हासिल करते हैं बिलाखिर एक दिन शिकार होते हैं। भोरिया चरण के ना सही, किसी और के सही, आखिर इंसानियत के रास्ते मुतय्यन कर दिए गए हैं। दुनिया गुजारने के लिए कुछ बनाया गया है, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। हट जाओ तो रास्तों से अंजाम तो होगा। दिल में ना जाने क्या क्या ख्यालात आते रहे। अचानक एक नया ख्याल आया। दिल डरा मगर उस वक्त तन्हा था। लाओ तजर्बा तो करूं। आवाज़ दी, भोरिया चरण। उसने यही कहा था कि वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं होता। जब भी उसे आवाज़ दूंगा वो आ जाएगा। दूसरी बार उसे पुकारा और इधर उधर देखने लगा। कहीं कोई तहरीक नहीं थी, मगर 2 ही लम्हों के बाद अचानक किसी चील की आवाज़ सुनाई दी। सहन में उसका साया नज़र आया। फिर वो सहन में आन बैठी। बड़ी मकरूह सूरत थी। चूँकि मैं किसी का मुंतज़िर था, इसलिए मेरी निगाह चील पर जम गई। चीलें अमूमन इस तरह सहनों में नहीं उतरती, बल्कि बुलंद दरख्तों या फिर कहीं दीवारों पर बैठती हैं। मगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। चील की पुष्ट से एक सूखी टांगों वाला बड़ा सा मकड़ा नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। चील ने पंजे दबाए, जिस्म तोला और फिजा में बुलंद हो गई। मकड़ा मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसका हुजम भी बढ़ता जा रहा था। उसे देखता रहा। मुझ तक पहुँचते पहुँचते वो पूरा कामत इख्तियार कर गया। उसके पाँव भी 4 रह गए थे। फिर वो सीधा खड़ा हो गया और पीली बदनुमा आंखों से मुझे घूर रहा था।